Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Reproduction in Plants. Reproduction helps plants to maintain their existence as new plants. They reproduce in many ways. Most of them reproduce through shoots. A flower changes into a fruit which contains seeds. New plants grow from the seeds. Non-flowering plants reproduce through spores. Some plants reproduce from their other parts, roots, stems and leaves. Reproduction is also called multiplying because many plants grow out of seeds or parts of plants. देखिए आपके प्लांट भी लिविंग बीइंग है और हर लिविंग बीइंग की तरह प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वो सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। आपका फ्लावर जो है फ्रूट पे चेंज होता है जिसमें सीड होते हैं, फिर न्यू प्लांट इस सीड से ग्रो करता है। जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है वो स्पोर के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। तो रिप्रोडक्शन को मल्टीप्लाइंग भी कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स ग्रो आउट करते हैं सीड से या फिर प्लांट के पार्ट से। तो आपके जो कुछ प्लांट्स हैं रिप्रोड्यूस करते हैं सीड्स के थ्रू करते हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो अपने पार्ट्स के थ्रू करते हैं जैसे रूट, स्टेम या फिर लीव्स। अ प्लांट प्रोड्यूसेस मेनी सीड्स। Undeveloped seeds do not grow. Some are eaten by animals and some are destroyed by heat or rain. Others may not get right conditions of soil, enough air and water. In this way, only a few seeds get a chance to grow into new plants. Therefore, a plant produces a large number of seeds to have a chance of survival. Thus, the plant tries to maintain and multiply its existence on earth in the form of a new plant. देखिए, जब हम सीड्स को सो करते हैं, बहुत सारी सीड्स को सो करते हैं, तो जो अनडेवलप्ड सीड्स हैं वो तो ग्रो नहीं कर पाता है। कुछ को एनिमल्स खा लेते हैं, कुछ हीट या रेन से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें राइट कंडीशंस नहीं मिल पाते लाइक सॉइल या एयर या वार्मथ। तो इस तरह से कुछ ही सीड्स जो होते हैं उनको चांस मिलता है न्यू प्लांट में ग्रो करने का। तो इसीलिए जो प्लांट होता है वो लार्ज नंबर ऑफ सीड्स को प्रोड्यूस करता है। स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। A seed has an outer covering known as seed coat. It protects the embryo or baby plant. It has a tiny hole to allow water to enter. There are two seed leaves or cotyledons inside the seed coat in grams, peas and beans. Wheat, maize or rice have only one seed leaf. Between seed leaves or inside a seed leaf, there is a baby plant. This baby plant has a tiny shoot and tiny root. Food is stored in the seed leaves for the baby plant till green leaves grow. सीड की एक आउटर कवरिंग होती है जिसे कहा जाता है सीड कोट, राइट। ये क्या करता है कि एम्ब्रियो यानी कि बेबी प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। इसमें टाइनी होल होता है जो वाटर को एंटर करने के लिए अलाउ करता है। तो दो सीड लीव्स होती है या फिर कॉटिलीडन्स। ये कहाँ होती है? जैसे आप ग्राम या पी या बीन्स की सीड्स को देखेंगे तो इनकी दो सीड लीव्स होती है, जबकि व्हीट, मेज या राइस की बात करें तो इनमें सिर्फ एक ही सीड लीफ होती है। तो बिटवीन सीड लीव्स और इनसाइड अ सीड लीफ एक बेबी प्लांट होता है। इस बेबी प्लांट की बहुत ही छोटी सी शूट और बहुत छोटी सी रूट होती है। फूड स्टोर्ड होता है आपके सीड लीव्स में बेबी प्लांट के लिए टिल ग्रीन लीव्स ग्रो। नीड्स ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड। A germinating seed needs air, water and suitable temperature. The seed needs air as it needs oxygen to breathe. The seeds get oxygen from the air trapped in the soil. Seeds are sown not deep but near the surface of soil to let them get air. When water is absorbed, seed becomes quite soft. It swells up and the seed coat is ruptured to let the baby plant come out. The seed needs proper warmth for its cell to become active and grow. They do not germinate in very cold or very hot temperature. A moderate temperature of 25 to 35 degrees centigrade normally favors germination. अब जर्मिनेटिंग सीड के लिए कुछ कंडीशंस का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एयर की हम बात करें, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ब्रीथ करने के लिए। तो सीड को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? सॉइल में जो एयर ट्रैप्ड होती है उससे। वाटर जब एब्जॉर्ब होता है तो सीड थोड़ा सा आपका सॉफ्ट हो जाता है, फिर वो स्वेल अप होता है, राइट। और जो सीड कोट होके रप्चर हो जाती है जिससे कि बेबी प्लांट बाहर आ जाता है। फिर सीड को प्रॉपर वार्मथ की ज़रूरत होती है जिससे कि उसके सेल एक्टिव हो सके, ग्रो कर सके। अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर है या बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर है तो फिर वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। और मॉडरेट टेम्परेचर आपका होना चाहिए इतना। 3 bean experiment. 3 mature and dried bean seeds are tied to a glass slide. The slide is kept in a beaker having water as shown in the figure.
The whole setup is left at moderate temperature. After a few days, only the middle seed germinates because it got both air and water. देखिए आपकी लास्ट स्लाइड में जैसे कि आपको उसमें दिखाई गई है, आपको 3 बीन्स के सीड्स लेने हैं, राइट, और इस तरह से उसे बीकर में आपको क्या करना है, डिप कर देना है. इसके बाद आपको क्या करना है, आप इस सेटअप को एक मॉडरेट टेम्परेचर पे छोड़ देना. कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि सिर्फ जो मिडल बीन था ना, यही जर्मिनेट हुआ, बाकी के 2 नहीं हुए, क्योंकि इसको एयर एंड वाटर दोनों मिले. जो आपका नीचे था सीड, उसको तो सिर्फ वाटर मिला, बट इट कुडंट गेट एयर. इसी तरह से जो ऊपर वाला सीड है, इसको एयर तो मिला, बट इट कुडंट गेट वाटर. स्टेजेस इन जर्मिनेशन. The seed grows in stages. First, the root appears coming out of the soft and moist seed coat. This is followed by the shoot. The root grows downward and the shoot grows upward towards sunlight. Gradually, green leaves grow. The leaves start making food for the new plant. The new plant at this stage is called a seedling. As the green leaves grow bigger, the seed leaves shrink as their store of food is over finished. Green leaves have begun making food for the plant. अब देखिए जो सीड है वो स्टेजेस में ग्रो करता है. सबसे पहले रूट अपीयर होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ओके, एंड रूट आपकी जाएगी डाउनवर्ड. उसके बाद आपकी शूट अपीयर होती है, एंड शूट जो है वो जाती है अपवर्ड सनलाइट की तरफ. फिर ग्रेजुअली आपकी ग्रीन लीव्स अपीयर होते हैं, राइट, ये ग्रो करते हैं. फिर लीव जो है वो खाना बनाना स्टार्ट करते हैं न्यू प्लांट के लिए. फिर जो न्यू प्लांट है स्टेज पे उसे कहा जाता है सीडलिंग. तो जैसे जैसे ग्रीन लीव्स बड़ी होती हैं, जो सीड लीव्स है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है, राइट. अब क्योंकि जो ग्रीन लीव्स है अब वो खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं. Reproduction by non-flowering plants. Non-flowering plants do not produce seeds but spores. Fungi, mosses and ferns are spore-producing plants. The spores are small and packed in spore boxes which appear as brown spots on the underside of the leaves. The spore boxes burst and scatter the ripe spores which then grow into new plant. जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो सीड्स नहीं प्रोड्यूस करते हैं, इंस्टेड दे प्रोड्यूस स्पोर्स. तो देखिए ये जो आपकी प्लांट है ये स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं. आपके क्या होता है कि जो स्पोर्स होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं और पैक्ड होते हैं आपके स्पोर बॉक्सेस में. तो ये स्पोर बॉक्स जब आपका बर्स्ट होता है, फिर स्कैटर होता है, जो राइप स्पोर्स होते हैं, फिर उसके बाद उससे न्यू प्लांट ग्रो करता है. रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव पार्ट्स. Roots, stems and leaves are the vegetative parts of the plant. Reproduction by roots, stem or leaves is called vegetative reproduction. Such reproduction is much quicker than reproduction through seeds. New plants from the roots. Sweet potato, radish, turnip, carrot, etc. are roots of plants which have food stored in them. If you put them in soil or water, roots and shoots grow out of them. देखिए ये आपके वेजिटेटिव पार्ट्स हैं प्लांट के. तो जैसे आपका स्वीट पोटैटो, रेडिश की बात करें या कैरेट की बात करें, ये प्लांट्स के रूट्स हैं. अगर आप इन्हें क्या करेंगे, सॉइल में रखेंगे या फिर वाटर में रखेंगे, तो रूट और शूट जो है इनमें से आपकी अपीयर होना शुरू हो जाएगी, ग्रो होना शुरू हो जाएगी. न्यू प्लांट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम. Potato, ginger and onion are underground stems which have food stored in them. Potato and ginger have buds. If you plant them into soil, a new plant grows from the bud. Onion is called a bulb because it is shaped like one. We plant bulbs of onions into the soil to get new plants of it. हम इन वेजिटेबल की बात करें तो ये आपके अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं जिसमें फूड स्टोर होता है. पोटैटो एंड जिंजर में बर्ड्स होते हैं, तो अगर हम सॉइल में उसको प्लांट करते हैं तो नया प्लांट उसमें से ग्रो कर देता है. अनियन को बल्ब कहा जाता है क्योंकि उसकी शेप बल्ब जैसी होती है. न्यू प्लांट्स फ्रॉम द रनर्स. प्लांट्स लाइक स्ट्रॉबेरी, ग्रासेस एंड मिंट हैव वीक स्टेम्स. देयर स्टेम क्रीप्स अलोंग द ग्राउंड. कुछ आपके प्लांट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल दीज प्लांट्स, इनकी स्टेम जो होती है वो काफ़ी वीक होती है, तो इनकी जो स्टेम होती है वो ग्राउंड में क्रीप करती है. Side branches grow out of the creeping stem. They separate and go inside the soil to grow into new plants. They look as if running on the ground. So they are called runners. तो इनकी जो side branches होती है ना, ये creeping stem से grow out करती हैं. फिर ये separate होके फिर ये soil के inside चली जाती है, फिर नया plants grow करता है. तो ये ऐसा लगता है जैसे कि ये ground में भाग रहे हो, इसीलिए इन्हें runners कहा जाता है. New plants from stem cuttings. Sugarcane and rose plants are grown from their stem cuttings. A stem cutting with buds is planted into the soil. This cutting grows into a new plant after a few days. Sugarcane या rose plant की अगर हम बात करें, इनको ग्रो किया जाता है इनकी स्टेम कटिंग से. स्टेम को कट किया जाता है,
बर्ड के साथ, और फिर इसको सॉइल में प्लांट किया जाता है। फिर ये जो कटिंग है एक न्यू प्लांट में ग्रो करती है कुछ दिन के बाद। व्हेन कटिंग्स आर अटैच्ड टू द शूट्स ऑफ अनदर प्लांट इट इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। By this method, branch cutting of a sweet mango grafted on the stem of a sour mango tree gives sweet fruits. A cutting of violet rose will produce violet flowers even on the plant of red rose. There will be flowers of two colors on one plant. देखिए जब हम कटिंग्स करते हैं ना, जो आपकी शूट्स के साथ अटैच्ड होती है दूसरे प्लांट की, दैट इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। इस मेथड से हम क्या करते हैं, जैसे कि स्वीट मैंगो की जो ब्रांच को हमने कट किया और उसको सार मैंगो के स्टेम के साथ ग्राफ्ट कर दिया, तो उसमें अब स्वीट फ्रूट्स आएंगे। इसी तरह से जो वॉयलेट रोज है, अगर कटिंग उसकी हम करते हैं तो वो प्रोड्यूस करेगा वॉयलेट फ्लावर्स इवन ऑन द प्लांट ऑफ रेड रोज। सो इसमें फ्लावर्स आपके होंगे दो कलर्स के, वो भी एक प्लांट पे। न्यू प्लांट फ्रॉम द टिप्स ऑफ ब्रांचेस और लेयरिंग। Side branch of a jasmine plant is bent towards the ground and a portion covered with moist soil while the growing tip is exposed. After some days, new roots develop. The branch is cut and the new plant with soil is planted in another place. New plants of raspberries are also grown in this way. Jasmine plant की जो side branch होती है वो ground की तरफ bend हो जाती है एंड कुछ पोर्शन उसका कवर हो जाता है मॉइस्ट सॉइल के साथ, राइट। तो कुछ दिन के बाद जो है वो न्यू रूट्स डेवलप हो जाते हैं। फिर इस ब्रांच को कट किया जाता है एंड जो न्यू प्लांट है विथ सॉइल उसको प्लांट किया जाता है दूसरी प्लेस में। इसी तरह से जो प्लांट्स होते हैं रास्पबेरीज के, वो भी इसी तरह से ग्रो किए जाते हैं। New plants from leaves. Leaves of some plants like Bryophyllum and Begonia bear buds on them. When kept in moist soil, they produce new plants. कुछ प्लांट्स की लीव्स होती हैं जैसे कि ब्रायोफिलम या बेगोनिया की, इनमें बर्ड्स होते हैं, तो जब इनको मॉइस्ट सॉइल में रखा जाता है तो वहाँ से न्यू प्लांट ग्रो करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। Food is essential for existence of life. Most of our food comes from plants like wheat, maize, rice, etc. They are called food plants. We grow them in the fields in large numbers to meet increasing demand of the growing population. Growing food plants at a large scale is called a food crop. We take special care of them. Cereals, pulses, oilseeds, vegetable and fruit crops are cultivated for food. We also grow crops of medicines, tobacco, coffee, tea, rubber and fibers. Different plants grow in different seasons, climates and soil. देखिए फूड हमारी लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा ज़्यादातर खाना जो है वो प्लांट से आता है। जैसे हम सीरियल्स की बात करें या आपका फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स हैं, अगर आप फूड प्लांट को ग्रो करें लार्ज स्केल में, दैट इज़ कॉल्ड फूड क्रॉप, तो हमें उनकी स्पेशल केयर करनी पड़ती है। सीरियल्स हैं आपके, या ऑयल सीड्स हैं या पल्सेस हैं, इनको कल्टिवेट किया जाता है फूड के लिए। इसके अलावा हम मेडिसिन की क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं, टबेको, कॉफ़ी, टी, इन सब को ग्रो करते हैं। तो डिफरेंट प्लांट जो है वो डिफरेंट सीजन में, डिफरेंट क्लाइमेट में और डिफरेंट सॉइल में ग्रो करते हैं। सीजन्स एंड क्लाइमेट। Fruits and vegetables like apple, peach, plum, cabbage and cauliflower grow in winter season or cool climate of hilly areas. Banana, guava, papaya, sugarcane, lady's finger, pumpkin and gourd grows in summer season or areas of warm climate. Coconut trees grow in hot and moist climate of the coastal regions. Crops of cereals, pulses and oilseeds like wheat, gram and mustard grow in winter and are called rabi crops. Crops like rice, maize and millets grow in summer and are called kharif crops. तो देखिए कुछ आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जो आपके विंटर सीजन में ग्रो करते हैं या फिर कोल्ड क्लाइमेट में हिल एरियाज में। कुछ आपके ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जो आपके वार्म क्लाइमेट में ग्रो करते हैं या फिर समर सीजन में। कुछ जो क्रॉप्स आपकी ग्रो की जाती है विंटर में उन्हें कहा जाता है राबी क्रॉप्स, फॉर एग्जाम्पल दीज। एंड जो क्रॉप्स आपकी समर में ग्रो की जाती है उन्हें कहते हैं खरीफ क्रॉप्स। Soil and water. Most of the crops need a well-aerated, sandy soil. But crops like rice and jute need clay soil so as to hold maximum amount of water to keep their root always in water. Soil of Bengal is of such type. Crops like groundnut and cotton are grown after rains to make use of the little water that remains stored in the soil. These grow well in the black soil of central and western India. देखिए ज़्यादातर जो क्रॉप्स हैं उनको वेल एरेटेड सैंडी सॉइल की ज़रूरत होती है, बट आपके राइस एंड जूट है उनको क्ले सॉइल की ज़रूरत होती है ताकि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को होल्ड करके रख सके। ग्राउंडनट या कॉटन की बात करें तो इनको ग्रो किया जाता है रेन के बाद, राइट। तो ये आपके ब्लैक सॉइल में अच्छे से ग्रो करती हैं जो आपके सेंट्रल या वेस्टर्न इंडिया में पाई जाती है।
Wheat is grown more in the sandy and well-irrigated soil of Punjab and Uttar Pradesh. Millets are grown more in sandy soil like that of Rajasthan, which has lesser amount of water. आपके wheat की अगर हम बात करें, ये आपके well इरीगेटेड और सैंडी सॉइल में उगाई जाती है जैसे कि पंजाब एंड उत्तर प्रदेश, जबकि मिलेट्स आपकी सैंडी सॉइल में होती है जैसे कि राजस्थान. टी इज ग्रोन ऑन हिल स्लोप्स ऑफ दार्जिलिंग, असम एंड नीलगिरी. द रेन वाटर फॉलिंग ऑन स्लोप्स फ्लोज डाउन लिविंग द सॉइल वेट बट द प्लांट रूट्स आर इमर्स्ड इन वाटर. टी जो है आपकी वो हिल स्लोप्स में ग्रो की जाती है जैसे दार्जिलिंग या असम या नीलगिरी में. तो जो रेन वाटर है वो स्लोप्स के थ्रू आपका फ्लो करता है जिससे कि जो सॉइल है वो वेट रहती है बट प्लांट रूट्स आपके वाटर में इमर्स्ड है. हाउ टू ग्रो अ गुड क्रॉप. We should use healthy and ripe seeds of the strongest plants for sowing. The soil should be prepared well by plowing, as all crop plants like well aerated soil. Deficiency of minerals is removed by addition of chemical fertilizers and manure to the soil. Decaying plants and cattle dung make compost, the natural manure or organic fertilizer, which is most essential for the crops. Urea, ammonium nitrate, phosphate and sulfate are chemical fertilizers. The crop should be irrigated at proper time. The weeds should be removed from time to time. अच्छा, अच्छी क्रॉप को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें हेल्दी सीड्स को सिलेक्ट करना पड़ता है, हेल्दी एंड राइप सीड्स को. सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है, उसको प्लाउ करना पड़ता है, राइट. फिर उसके बाद जैसे कि अगर मिनरल्स की डिफिशियंसी हो जाती है उसके लिए मैन्यूर ऐड किया जाता है, फर्टिलाइजर्स ऐड किया जाता है. डिकिंग प्लांट्स जो कैटल डंग है ये आपका नेचुरल मैन्यूर है, राइट. इसके बाद क्रॉप को वेल इरिगेट करना चाहिए एंड टाइम टू टाइम करना चाहिए. वीड्स जो हैं यानी कि वीड्स आपके होते हैं अनवांटेड प्लांट्स, इनको भी टाइम टू टाइम रिमूव करना चाहिए. प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स. Herbivorous animals like cows, buffaloes and goats etc. not only graze the top parts of plants but also crush and diminish them. They can be kept away by making proper fence of barbed wire all around the fields. अच्छा देखिए, कुछ हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं ना, क्रॉप्स का जो अपर पार्ट होता है उससे तो खाते ही हैं, साथ ही साथ हमारे क्रॉप को क्रश भी कर देते हैं, उसको डैमेज कर देते हैं. तो इसीलिए जो फील्ड्स है उसमें प्रॉपर फेंसिंग होनी चाहिए बार्ब्ड वायर्स की. Rats, birds and squirrels eat up the fruits and grains of crop plants. They should be kept away from fields. इसी तरह से बर्ड्स या स्क्विरल्स हैं, ये क्या करते हैं, फ्रूट्स या फिर जो क्रॉप प्लांट की ग्रेन्स है ना उसे खाते हैं, तो इसीलिए उन्हें फूल से दूर रखना चाहिए. Insects like aphids, grasshoppers and caterpillars eat the leaves of plants. Some eat fruits too. Insects are killed by spraying chemicals like DDT and Gamaxine. But these chemicals are absorbed by plants and thus pass on to humans with their diet. Therefore, the use has been prohibited. Instead, the breeding of insect is controlled by removing their eggs. Weeds are their hiding places and alternate food, so weeds are removed. Harmed leaves and fruits and diseased plants are removed as early as possible to prevent spread of insects. अच्छा, कुछ आपके इंसेक्ट्स होते हैं जैसे ये क्या करते हैं, लीव्स तो खाते ही हैं बट कुछ तो ऐसे जो फ्रूट्स को भी खाते हैं, तो इनको किल करने के लिए केमिकल्स का यूज़ किया जाता है जैसे DDT एंड गैमेक्सिन. बट ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है क्योंकि प्लांट्स इन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड देन ये ह्यूमंस में पास ऑन हो जाते हैं, तो इसीलिए इनका यूज़ जो है वो प्रोहिबिट कर दिया गया है. तो इंसेक्ट के ब्रीडिंग को कंट्रोल करने का तरीका होता है कि उनके एग्स को ही रिमूव कर दिया जाए, राइट. तो वीड जो होते हैं इनके लिए परफेक्ट प्लेस होते हैं हाइड करने के लिए और इनका अल्टरनेटिव फूड भी. सो इसीलिए वीड्स को ही हटा देना चाहिए. इसके अलावा अगर लीव्स खराब लीव्स हैं, फ्रूट्स खराब है या कोई डिसीज प्लांट है उसे भी रिमूव कर देना चाहिए. Fungi, viruses and bacteria cause several diseases in crop plants. They are looked out from the very beginning and removed. When necessary, a dilute fungicide is sprayed. अब ये जो माइक्रोब्स हैं ये क्या करते हैं, हमारी क्रॉप को नष्ट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं. तो जब ज़रूरत हो तो एक डाइल्यूट फंजाइसाइड भी हम स्प्रे कर सकते हैं. Protection of seeds in store. Seeds of cereals etc. are main part of our food. So we raise seed crops and store them for year-long use. If the seed becomes damp, they become rotten and spoiled by fungi. So godowns should be kept dry. Rats and insects should not reach them. The seeds should be stored in airtight and sealed containers. To prevent possibility of spoiling, chemicals are mixed in it. Therefore, seeds should be washed well before being used. जो सीड्स होते हैं सीरियल्स के वो हमारे मेन पार्ट है हमारी फूड का, इसीलिए जैसे कि हम क्रॉप ग्रो करते हैं फिर उनमें से जो सीड्स जो आपके निकलते हैं यानी जो सीरियल्स होते हैं उनको हमें लंबे टाइम तक के लिए चलाना होता है, तो इसीलिए उनको प्रॉपरली स्टोर करना चाहिए,
अगर सीड आपके डैम्प होंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे, राइट। तो इसीलिए गोडाउन्स जहाँ पे इनको स्टोर किया जाता है इनको ड्राई रखना चाहिए। रैट्स और इंसेक्ट इनकी पहुँच से दूर होने चाहिए, इनको एयर टाइट और सील्ड कंटेनर्स में ही स्टोर करना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि ये पॉसिबिलिटी होती है स्पॉइलिंग की, तो इसीलिए केमिकल्स को मिक्स कर दिया जाता है। इसीलिए सीड्स को यूज़ करने से पहले अच्छे से वॉश करना चाहिए। Forget me not. Plants reproduce by germination of seeds or spores or by growing from roots, stem and leaves. A plant grows a large number of seeds to have a chance that at least some of them grow. A seed has a baby plant and stored food in it. Water, air and suitable temperature are necessary for seed germination. Growing certain plants on a large scale is called a crop. Better crops are grown by the use of healthy seeds, proper soil preparation, addition of fertilizer, proper irrigation and good care. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।